کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں جو مسائل بتا رہے تھے ہمیں بہت خوشی ہوئی، یہی کچھ سیکھ کے ہم ادھر جا رہے ہیں اور آگے بھی یہی جگہ بتائیں گے ہم۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا بالخصوص اہلیان کراچی کو کہ وہ مدنی مذاکروں میں آئیں، شرکت کریں اور امیر اہل سنت کے مدنی پھول حاصل کریں۔ آج ہم نے سنا کہ سیٹی بجانا جو نا وہ جائز نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ کوئی ناجائز ہے یا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ادھر آئے گا وہ فائدہ ہی اٹھا کے لائے گا، یہاں پہ بہت کچھ ملتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ہمیں مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ ایک تو اس کی ظاہری تاثیر ہے نا کہ علم دین سیکھنا سکھانا، باطنی تاثیر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے در سے دور ہوتے ہیں ان کو کھینچ کے قریب لایا جا رہا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پر امیر اہل سنت جو برکتیں لٹا رہے ہیں، دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کسی سعادت سے ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ دین کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتارنا یہ غرض اور مقصود ہوتا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی سوچ دینا، فکر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر دینا اور اپنے محاسبے کی فکر دینا، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مدنی مذاکرے کے اندر ملتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں آنے کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ چونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر اولیاء کا فیضان ہے تو وہ فیضان جو ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کرم جو ان پر ہے وہ ان کے صدقے جو آگے جو ہے موجودین پر حاضرین پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ اسلام بھائی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، نہ کہ خود آئیں، دیگر اسلام بھائی کو اپنے ساتھ لائیں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے
بس یا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिदों ने सआदत पाए इर्तिकाफ की नियत जरूर फरमाए। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की। अब मुअतकिफ हो गए, जब तक मस्जिद में रहेंगे इर्तिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से खारिज होंगे, बाहर निकलेंगे, तो ये नफल इर्तिकाफ खत्म हो जाएगा। जब भी दिल में नियत एहतिकाफ की करेंगे तो बेहतर यह है कि ज़बान से भी कह लें, वरना दिल की नियत काफ़ी बल्कि ज़रूरी भी है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। नहीं की थी तो अब कर दीजिए और इफ्तार वगैरह कर लीजिए। लेकिन ये है कि जब भी एहतिकाफ की नियत करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए करें। और बेहतर ये है कि कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लिया जाए, कम से कम 12 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। अब भले इफ्तार वगैरह चाहे तो कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के जुल्हज शरीफ की आज 9th शब है। मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से 9 की मुनासबत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 9, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूं, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन कुछ देखते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमिर और बाबर दो दोस्त हैं। इस बार कुर्बानी के दिन करीब आते ही आमिर के वालिद कुर्बानी के लिए बकरा ले आए। अरे मेरा बकरा आ गया। और बाबर के वालिद ने अब तक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा था। आमिर रोजाना अपने बकरे को चारा खिलाता है, उसका खूब ख्याल रखता है। एक दिन बाबर अपने दोस्त आमिर के घर जाता है तो बाबर देखता है कि आमिर अपने बकरे को चारा खिला रहा है और उसका बहुत ख्याल रख रहा है। ऐसे में बाबर उसके पास जाकर कहता है कि भाई, आपका बकरा तो बहुत प्यारा है, क्या मैं भी इसे चारा खिला सकता हूँ? नहीं नहीं, ये हमारा बकरा है और हम अपने बकरे को खुद चारा खिलाते हैं। आप अपने बकरे को खिलाओ। अरे यार, मेरे अब्बू तो अभी तक बकरा ही मिला है, इसीलिए तो मैं आपके बकरे के पास आ गया। क्या मतलब, आपके अब्बू अभी तक बकरा ही लेकर आए? आप अपने अब्बू से बोले ना वो बकरा लेकर आए। मैं तो अपने बकरे का ख्याल खुद रखूंगा, आप जाओ यहाँ से। अब्बू, अभी तक हमने अपना बकरा क्यों नहीं खरीदा? आपको पता है, मोहल्ले में मेरे सब दोस्तों के यहाँ कुर्बानी के जानवर आ गए, मुझे भी बकरा चाहिए। बेटा, अभी तो ईद में कुछ दिन बाकी हैं। अल्लाह ने चाहा अगर ईद से पहले हमारे पास कुछ पैसे आ गए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जरूर कुर्बानी के लिए बकरा ले आएंगे। नहीं अब्बू, मुझे कल ही
बकरा चाहिए बस। मैं भी अपने दोस्तों की तरह अपने बकरे को चारा खिलाना चाहता हूँ। मुझे भी अपने बकरे को घुमाने लेके जाना है। मुझे बस कल ही बकरा चाहिए, मुझे चाहिए बस कल ही चाहिए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर अब्बू के पास बकरा दिलाने के पैसे ना हो तो क्या हम बच्चे उनसे बकरा लेने की जिद कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। वाकई कई बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे तरसते होंगे बकरों से खेलने के लिए, और घर में वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। ऐसे मौके पर जिद नहीं करनी चाहिए कि अगर इनके पास वालिद साहब के पास गुंजाइश नहीं है बकरा लेने की, तो एक तो इसका हो सकता है कि इनको सदमा हो, और दूसरा बच्चों की जिद इनके लिए मजीद टेंशन का बाइस बने। तो इसलिए इस तरह अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। दरखास्त कर दी, ठीक है, मतलब एक आध बार कह दिया मगर जिद के अंदाज में नहीं, तो फिर वालिद ने बोल दिया कि गुंजाइश नहीं है, तो फिर सब्र करें, बार बार मुतालबा ना करें। और जिसके पास बकरा है वो भी जो कह रहे थे कि मेरा बकरा है, मैं किसी को घास नहीं खिलाने दूंगा, तो ये भी मौजूदा दौर की एक झलकियाँ जी कि बच्चे इस तरह करते हैं, मेरा बकरा है, हाथ नहीं लगाना इसको। तो ये बच्चों को भी दिल बड़ा रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कहता है दूसरा कि मैं चारा खिलाता हूँ, तो उसको डांटने के बजाय अपना चारा जो है इसके हाथ में दे दे कि चलो आप खिला दो, इससे दिल जोई होगी। और मुसलमान का दिल खुश करना ये बड़े सवाब का काम है। और ये भी ना कहा करें कि इस अंदाज में कि मेरा बकरा है, मेरा बकरा है, कि जिस इस अंदाज में ना कहा करें कि जिससे किसी का दिल दुखे, बच्चे का दिल टूटे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जब से हम ये जानवर लेकर आए हैं तो सबसे परेशानी की बात हमारे लिए वो यहाँ एक हुजूम लगा हुआ है लोगों का जी। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर रश जो लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीधे पाँव की हड्डी मांगते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अर्ज़ है। तो आज हमने भी एक नई बात सुनी जो आज हमें बताई यहाँ पर। ये कहते हैं कि ये जो ऊँट के सीधे पाँव की हड्डी होती है, यानी इस जगह से लेकर ये घुटने तक की हड्डी, ये लोग बहुत ज़्यादा मांगने के लिए आते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी ज़्यादा ये सीधे पाँव की ये जो हड्डी है, क्यों लोग इतना ज़्यादा ये हासिल करने की कोशिश करते हैं? इस हवाले से भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अर्ज़ थी कि ऊँट को जब नहर किया जाए तो ऊँट को नहर करते वक्त उसके कौन से पाँव को बांधा जाए, उसके सीधे पाँव को बांधा जाए या उल्टे पाँव को बांधा जाए, कौन सा पाँव बांधना ये ज़्यादा बेहतर है? इस हवाले से भी इरशाद फरमाइए। अल्लाह अल्लाह। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक ऐसे शख्स के पास तशरीफ लाए जो अपने ऊँट को बिठा कर नहर कर रहा था। तो आपने फरमाया इसको खड़ा करके बांधो। ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। खुलासा ये कि ऊँट को नहर करना सुन्नत है और ज़बहा खिलाफ औला, यानी ज़बह करना बेहतर नहीं है। ऊँट को नहर का तरीका ये कि खड़े ऊँट का बायां लेफ्ट पाँव, जो उल्टा पाँव है, लेफ्ट पाँव रस्सी से बांध दें, फिर सीने से मुत्तसिल, सीने से मिली हुई गर्दन में नेज़ा मारे और ऊपर को खींचे ताकि रगें और हुल्कुम तूल में, लंबाई में चिर जाए। जब गिर जाए तो इस्तेमाल करें, लेकिन जिसे नहर ना आता हो वो ज़बह करे। तो ये कि ये गर्दन और सीने से मिला हुआ जो हिस्सा है ना,
तो इस पर मतलब नेज़ा लिखा, पहले नेज़े होते थे, अब वो छुरी, तो छुरी नोकदार हो और तेज हो। इतनी सी छुरी से करते ना, वो नहर नहीं करते, वो ज़बा कर रहे होते हैं। वो लोग समझते हैं नहर कर रहे हैं, इनको आता नहीं होता। तो ये लंबी होती है नहर की छुरी, तो अंदर जाइए, और ये यूं जाएगी, यूं नहीं जाएगी। ये आजकल यूं कर रहे होते हैं, ये कट मार रहे होते हैं। तो नहर का तरीका वही है कि जो बताया गया कि ये सीने से गर्दन का जो हिस्सा मिला हुआ है, यहाँ जो रगें होती हैं, खुराक की रग और सांस की नली वगैरह, खून की रगें, तो ये यूं भोंक देंगे इसको, फिर यूं ऊपर की तरफ यूं ला के चीर के यूं करके निकालेंगे। तो इससे क्या, ये सब कट जाएंगी इसकी रगें, और खून का बहुत बड़ा मतलब फव्वारा उबलेगा और फौरन ऊँट जो गिरेगा। लेकिन उसका लेफ्ट पाँव जो है ना, वो बंधा हुआ हो, उल्टा पाँव, तो इससे क्या वो भाग नहीं सकेगा, वरना भाग कर नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा ये इसके जो समझदार लोग होते हैं, इसका मुंह भी बांधते हैं, हरज नहीं इसमें, मुंह बांध देते, वरना क्या करता है ये, ऐसी वीडियोस हो सकता है आपने देखी हो, मैंने भी देखी है, कि ये मुंह खोल देता है। जब इसको मारा तो तकलीफ से मुंह खोले, अब जो काट रहा है उसको या ज़बा कर रहा है, नहर कर रहा है, नहर तो शायद कभी करते हैं बेचारे, वो ज़बा कर रहे होते हैं, आता नहीं इनको। तो अब ये मुंह खोल के पकड़ लेता है, पकड़ता ये गर्दन पकड़ने जाता है, लेकिन किस्मत अच्छी होती है तो ये कपड़ा हाथ में आ जाता है, इसके मुंह में आ जाता है, यहाँ का या वहाँ का। तो ये उठा कर भी तकलीफ की वजह से उसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, छोड़ देता है, बंदा गिरता है। ये देखें, होता खतरनाक है ये मामला भी, कि छुरी उसके हाथ में, उसी को लग गई या जो भी हो, चोट आएगी, फिर दहशत खौफ दिल में बैठ जाएगा। तो ऐसे मौके पर करीब से देखना नहीं चाहिए। तो तमाशा भी करते हैं ना, तो और मुंह बाज नहीं बांधते, इनको शायद पता नहीं होता, मुंह बांधने में सहूलत है कि फिर ये पकड़ नहीं सकेगा। लेकिन ऐन मुमकिन अगर रस्सी अगर उल्टे पांव की नहीं बांधी और या हल्की फुल्की बांधी और खुल गई, और गल सुतून वगैरह में भी बांध देते हैं इसको, तो अगर ये भी ना बांधा तो फिर अगर ये भागने में कामयाब हो गया ना, फिर ये मजमे पे अपने पाँव से अगर मुंह बंधा हुआ तो भी ज़ाहिर है कि ये जो कुछ करेगा, अगर कोई इसके उसमें आ गया तो अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। ये जानवरों के लोग तमाशा तो देखते हैं, और ये भी हज़्ज़े नफ्स के लिए देखते हैं, मज़ा आता है। ये इबरत वाले मनाजिर होते हैं, बंदा अपनी मौत को याद करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं, अल्लाह पाक मुझे अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया, मैं इसकी जगह होता तो तमाशा बनता तो क्या होता। तो बहरहाल ये कि तमाशा नहीं बनाना चाहिए, रहम खाना चाहिए, मगर चूंकि ये हलाल है इसलिए वो इसको हलाल तो समझना ज़रूरी है। तो दिल में रहम की कैफियत हो तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब रहा ये कि हड्डी का मांगना, तो ये हड्डी मांग रहे, नली है ये तो, जो दिखा रहे थे ये वो हड्डी नहीं है जो ये मांगते हैं। ये अंदर में मतलब दस्ती जो होती है ना, दस्ती में एक चौड़ी हड्डी होती है, ये मांगते हैं। सवाल करने वालों को मेरे ख्याल में गलतफहमी हुई है। अच्छा, और ये हड्डियां पहले इस पे जब कागज ईजाद नहीं हुए थे ना, तो इस पे लिखते थे, चौड़ी हड्डी है, लिखने में इस्तेमाल होती थी। और अब लोगों में बहरहाल तरह तरह की बातें हैं, तो अब ये क्यों मांगते हैं, ये जवाब मेरे जिम्मे है या जो मांगते हैं उनके जिम्मे है कि भाई आप क्यों मांग रहे हैं। अब इसमें तरह तरह के लोग बोलते हैं कि इससे जादू का तोड़ होता है, तो फुला होता है, तो वो अल्लाह बेहतर जाने, तो वास्ता नहीं पड़ा, जादू का या तोड़ होता भी है या नहीं होता। अब अगर कोई ऐसा ये टोटके होते हैं इस तरह के, अगर बुजुर्गों से साबित हो, बुजुर्गों के फेल से या बुजुर्गों के इरशाद से साबित हो, तो ये टोटके मुफीद होते हैं। और वैसे भी अगर वैसे ही किसी ने कर भी दिया, हड्डी घर में रख ली, तब जा रहे कि इसको गुनाह कहने की भी कोई वजह नहीं है कि भाई ऊँट की हड्डी रखना नाजायज़ है,
बल्कि नज़र से बचने के लिए तो हदीस पाक में सराहत है ऊँट की हड्डी रखने की। खेतों को नज़र से बचाने के लिए ऊँट की हड्डी रखने की हड्डी रखने की सराहत है। फिर वो बुजुर्गों का शायद वो अमल है कि वो खोपड़ी है ना, ऊँट की खोपड़ी, पूरा वो ढांचा जो होता है ना मुंह का, वो रखने का मतलब ये नहीं है। लेकिन ये कि ये जो चौड़ी हड्डी जो निकलती है, इसको हम अपनी ज़बान में फड़ की हड्डी बोलते हैं, गालिबन फड़। और ये दस्ती जो होती है बाजू, सीधा से ही बताया इन्होंने, मगर ये जो अंदर में जो गोश्त था ना, इसके अंदर चौड़ी हड्डी होती है। ये हर जानवर में, तो बकरे में भी होती है, गाय में भी होती है। तो पहले क्या करते थे, ये बकरे या गाय की हड्डियाँ ये निकाल कर, हमने बचपन में अपने देखा, वो हड्डी को निकाल के तोड़ के फेंक देते थे, साबित नहीं फेंकते थे। और ये गोश्त फरोश लोग बोलते थे कि इससे जादू होता है। तब खुदा बेहतर ने अच्छा, फिर ये जादू का कुंडा यूं हुआ कि फिर इनको हिस्स पैदा हुई। क्या मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, समझे? तो अब लगता उर्फ बन गया कि वही हड्डी अब फेंकते नहीं है, निकालते नहीं है, और गोश्त में तोल के दे देते हैं। उसी जादुई हड्डी को टुकड़े करके हंडिया में डलवा के खिला देते हैं। ये सही बोलता हूँ आपको। अब ये नहीं फेंकते, पहले फेंकते थे। ये है इनके जादू का हाल, अब खुदा बेहतर जाने। जो पुराने गोश्त फरोशों को, उनको मेरी बात समझ में आएगी कि यार पहले से होता तो था, फेंक तो देते थे जादू जादू करके, अभी कहाँ गया जादू। तो जिन हड्डियों का उर्फ हो, फेंकने का रवाज हो, उनको गोश्त के साथ इस तरह लोगों को तोल के दे देना, ये होता नाजायज है। लेकिन अब लगता है इस हड्डी का उर्फ हो गया। हाँ, पूरी रान तोड़ी, पूरी दस्ती तोली जो बेचने वाले, तो उनमें तो ये हड्डियाँ, चिचड़े, दूध, ये सब वजन में जा रहे होते हैं, और पता भी होता है बेचने वाले को। तो वो दुरुस्त है अपनी जगह पर, बड़े बड़े पीस। लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े, पाव आधा किलो इस तरह देते ना, इसमें ऐसी हड्डी डाल देना, ऐसा चिचड़ा डाल देना कि जिनके फेंकने का रवाज है, और जो वजन में नहीं देना चाहिए, पता होता है इनको, ये फिर भी डाल देते हैं। फिर वो छील के हड्डी भी वो इस तरह फेंक देते हैं लोग। ये सही नहीं है। जिसका उर्फ हो फेंकने का, जिसका उर्फ ना हो फेंकने का, रवाज ना हो, तो वो जायज़ होती है। ये देखो इस हड्डी की बात, तो ये जो हड्डी सवाल में बताई गई ना, वो इसमें ये हड्डी यहाँ नहीं होती, जो मैं समझ सका हूँ। ये हड्डी होती गोश्त के अंदर, पसलियाँ जहाँ होती है ना, तो इसके साथ ये मिला हुआ हिस्सा होता है, उसमें ही होती है। और ऊँट की हड्डी के ताल्लुक से एक सहाबिया रदियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुई कि हम किसान लोग हैं, फार्मर्स, और हमें अपने खेतों पर नजर बद का डर रहता है, नजर लग जाने का, बुरी नजर लग जाने का डर रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेती में जमाजम रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। जमाजिम, तो जमाजिम जानवरों की हड्डियां या खोपड़ियां जो कि नजर बद से बचाव के लिए लटकाई जाती हैं। ये हदीस के बाद ये उसमें ब्रैकेट में वो लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने साद बिन इब्राहिम ताबेई रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि आप अपने खेत में ऊँट की खोपड़ियाँ रखा करते और लोगों को भी उसके रखने का हुक्म देते और फरमाते कि ये नज़र बद को लौटाने वाली है। इससे नज़र बद नहीं लगती, लौट जाती है। नज़र खोपड़ी पर पड़ेगी तो फिर पलट जाती है, शायद ये मुराद हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदी मरकज़ के अलावा जामिअतुल मदीना फैज़ान बुखारी मूसा लेन
जामिअत मदीना फैज़ान नूर, नूर मुस्तफ़ा आगरा ताज, जामिअत मदीना रहमत मस्जिद भीमपुरा, जामिअत मदीना मुज़म्मिल मस्जिद उस्मानाबाद, जामिअत मदीना अहले बैत कुम्हारवाड़ा, जामिअत मदीना फैज़ान मोहम्मदी गुलशन मेमार, जामिअत मदीना फैज़ान हुसैन सहराए मदीना टूल प्लाजा, जामिअत मदीना काड़वी सोल्जर बाज़ार, जामिअत मदीना अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन, जामिअत मदीना कुतुब मदीना गोदरा, जामिअत मदीना गौस आज़म न्यू कराची। और डिस्ट्रिक्ट बदीन से भी माशाअल्लाह आज काफ़ी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जो है वो सुजावल, बदीन, तलहार, मातली, जाती, दड़ो से भी एक बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कल का रोजा भी रखेंगे? कल तो 9 जी जी जुल्हज्जा है, कल तो वो सबको रोजा रखना चाहिए इंशाअल्लाह। यानी इसकी फजीलत एक तो ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान के मुताबिक 9 जुल्हज्ज शरीफ का रोज़ा, यौम अरफा का रोज़ा 1000 दिन के रोज़ों के बराबर है, 1000 डेज। और एक हदीस पाक में कि एक साल पिछले और एक साल अगले के गुनाह माफ़ होते हैं, छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह। यूँ बड़ी फजीलत वाला दिन है। हाजी को रोज़ा मना होता है, लेकिन आज तो हज तो हो गया वहाँ पर, आज 9 तारीख थी मक्के मदीने में, लेकिन हमारे यहाँ कल 9 तारीख है। आज हम यहाँ हमारे यहाँ शब अरफा है। तो यूँ कल का रोज़ा तो सबको रखना चाहिए जिसको मजबूरी ना हो, इंशाअल्लाह करीम। सहरी का भी इंतजाम होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन ये कि सो जाते हैं, इसका क्या? हाथ तो काफी उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह तैयार है इंशाअल्लाह। आज टोकन लेंगे, बगैर टोकन के खिलाएंगे? टोकन होने चाहिए ना, टोकन हो तो ज्यादा। और टोकन का एक ही स्टाइल रखते हैं आप यार। ये बीच में पता चला था टोकन का ठिया ठोला सा उलट पुलट कर दिया था, और वो बंदा भी तकलीफ में आ गया था। एक बेचारा बैठा था टोकन दे रहा था, ये 2-3 दिन का किसी ने मुझे बताया था। ऐसा ही होता है, एक ही होता है और ये हड़ाउड़ी कर देते हैं टोकन के लिए, जैसा हम रह जाएंगे। तो सहरी करना रोजे के लिए सुन्नत और ईज़ा मुस्लिम हराम। किस पे डन करेंगे आप? जो करते हैं इसे उड़ी करके धक्कम पील नहीं यार, ऐसा ही रोजा नहीं रखना है, मगर मुसलमान को तकलीफ नहीं देनी है। नफल रोजे के लिए बोलता हूँ, फर्ज रोजा तो बहरहाल उसकी तरकीब तो करनी ही करनी है, और नफल भी रखना अल्लाह की रहमत से, लेकिन ईज़ा मुस्लिम नहीं। तो ये कि या को आज कोई या तो ठिये बढ़ा दो, क्योंकि कुछ और भी होते हैं ऐसे साहिबा इधर उधर से आते हैं, तो वो रोजा शायद ना रखने वाले भी होते हैं इसमें। देख ले जिस तरह आपको मुनासिब लगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नियामता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हक़ रसूल मक्के मदानी कोने में तुमसा कोई नहीं वला कोई नहीं। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। तमन्ना है मेरे मौला दयाले मुस्तफा देखूं। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। प्यारे बाबा जान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वीडियो में क्लिप्स कर ली है। हर सहाबी नबी चार याराने नबी, फातिमा और अली,
والدین نبی، ہر زوجائے نبی، چھوڑ کر دنیا کی، چھوڑ کر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں، آقا کی ولادت مرحبا، مولا کی ولادت مرحبا، مرجع کی ولادت مرحبا، مولا کے آمد مرحبا، مرجع کے آمد مرحبا، آقا عطا کے آمد مرحبا۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنائے۔ اللہ پاک ان سب کو ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، اس میں ایک درخواست کرنی تھی بچوں کے لیے جو بھیجتے ہیں نا، کہ یہ قرآنی صورتیں پڑھتے ہیں، معنی بعضوں کا الٹ پلٹ اور کچھ کا کچھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں جو لبیک یا جو چیزیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات اس میں غلطیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اب منع کرنے میں یوں بھی ڈر لگتا ہے کہ پھر یہ اتنا بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بچے ان پر حکم تو کیا لگے گا، لیکن چھوڑ دیں گے پھر۔ تو اس لیے وہ مدنی چینل پر جانے کے بہانے یہ اس طرح محنت ماں باپ بھی کرتے ہوں گے ان پر، اور یہ بچے بھی محنت کرتے ہوں گے، تو کرنی بھی چاہیے، لیکن مدنی چینل کے لیے نہیں، اللہ کے لیے سکھانا چاہیے۔ تو ان کو جتنا ممکن ہو نا درست سکھائیں۔ اب یہ بھی مشکل ہے کہ ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہوتا نا کہ درست کیا اور نادرست کیا، یہ بھی ہوتا ہوگا نا، تو یہ ایک ہے مطلب پرابلم۔ یہ اس کی بھرپور کوشش فرمائیں، اگر آپ جانتے ہیں یا کوئی خاندان میں جانتا ہے، یا مسجد کے امام صاحب کے پاس بھیج دیں کہ یہ اس کو مطلب تھوڑا چیک کر لیں اور مزید پکا کر دیں۔ کوئی بھی ایسی صورت ہو گئے بچہ جو پڑھے نا تو یوں پڑھے، مطلب لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ واہ بھائی اس بچے نے پڑھا۔ اب یہاں تو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی، قرآن صورت کہاں سے صحیح پڑھے گا وہ؟ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے، تکمیل کمپلیٹ کرنا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ایک مسئلہ ہو گیا، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے مشقت کر کے پیسہ جمع کیا تھا 75,000 روپے، تو انہیں 73,000 کا ایک جانور مل گیا تھا۔ اب وہ جانور 3-4 دن کے بعد بیمار ہو کے مر گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں میں معلومات کری ہیں تو سب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو دوسری قربانی کرنا واجب ہے، اتنی قیمت نہیں، اس سے زیادہ قیمت میں۔ اب وہ بیچارے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت شرعی فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر بہت زیادہ ہوگا میں ایک بکرا کر سکتا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، ذرا ارشاد فرمائیے۔ گھبرائیے نہیں، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ اور جو یہ جانور مر گیا اس کا، اس پر بھی ان کو ثواب ملے گا، قربانی اپنی جگہ ثواب ملے گا، کہ معمولی سا نقصان بھی ہو جاتا ہے، کچھ چیز گم ہو جاتی ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی 73,000 کا جانور اس کا فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اور سارے اس کو صدمہ، اس کا ثواب، رنج و غم اس کا ثواب، اور لوگوں کا طرح طرح کی باتیں بنانا، اس پر صبر کرنا، ٹینشن میں آنا وغیرہ، سارے ان کے لیے ثواب کا چاروں طرف سے خزانہ جو ہے نا، یہ ان کے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اب شرعی مسئلہ یہ کہ چونکہ یہ فقیر بھی ہو گئے بیچارے، تو ان پر دوسرا کوئی جانور لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، کہ یہ کہا انہوں نے
یہ میں سن نہیں پایا. اچھا اتنا بڑا جانور نہیں لے سکتا, اس سے قیمتی بلکہ بکرا لے سکتا ہوں. بکرا لے سکتے, لیکن اگر یہ صاحب ہو گئے شریف فقیر, بھائی شریف فقیر کے بعد اتنی تو بعض وقت گنجائش ہوتی کہ وہ بکرا لے بھی لے, لیکن یہ کہ قرضے میں ڈوبا ہوا یا کوئی بھی مسئلے ہوتے ہیں اس کے, تو اگر وہ جیسے آگے کہا کہ شریف فقیر ہو گیا ہوں, وہ کہہ رہا ہے, تو اگر شریف فقیر ہو گیا ہے لیکن ادھر ادھر سے ہاتھ پیر مار کے وہ بکرا لے سکتا ہے, تب بھی واجب تو نہیں ہوگا نا اس پر بکرا لے کر قربانی کرنا, کیونکہ ہے جب کہ شریف فقیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اگر خود کے لیے زیادہ گوشت رکھے اور رشتہ داروں اور غریبوں میں کم تقسیم کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرن. قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک اپنے لیے. یہ مستحب ہے. اگر کوئی پورا جانور فریز میں بھر لیتا ہے تو حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. تو یوں اگر زیادہ گوشت رکھ لیتا ہے اپنے لیے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ قربانی ہے, قربانی کے ساتھ قربانی. ہمارے یہاں تو ہے نا مغز, بیجا, کلیجی جو اپنی پسند کی ہوتی ہے وہ چیز تو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں. قربانی کے جانور کی پسندیدہ بوٹیاں, چانپے تو شاید کوئی بھی چھوڑتا نہ ہو. چانپے مشہور ہے, لیکن مجھے اب تک سمجھ نہیں ہے کہ چانپ میں ٹیسٹ ایسا کون سا ہے. اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن چانپے ضرور رکھتے ہیں. چانپ میں تو محنت پڑتی ہے کھانے میں, جس کو ہڈی صاف کر کے کہ کوئی ریشہ اس میں ضائع نہ ہو, یعنی ایسا شریعت کا پابند کوئی ہو نا کہ وہ مطلب صحیح طریقے سے کھائے, تو اس کے لیے چانپیں جو ہے نا وہ آزمائش والی ہے, ٹائم لیتی ہیں اس کا. اگر آپ غور کریں, خالی یوں نوچ نوچ کے پھینکنے والے کے لیے چانپیں ہو سکتا صحیح ہوتی ہوں. آج کل تقریباً نوچ نوچ کے پھینکنے کا ہی رواج ہے. قربانی کا تو کچھ زیادہ ہی مطلب گوشت پھینک دیتے ہیں لوگ, یا بھی کچھ نہیں سمجھ آتی. آخرت میں سانی ہم پھنس جائیں, ذرے ذرے کا جہاں حساب ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت کے دن جو ایک ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ برا عمل کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. قیامت کے دن پیشی کا دن ہے وہ. ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ مختلف اس کی تعریفات ہیں ذرے کی, یہ بہت باریک ہوتا ہے. آپ نے دھوپ میں کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ شیڈ پڑتا ہے جس میں کچھ جیسے ایسا لگتا ہے کہ دھول اڑ رہی ہے, اور دھوپ میں یا لائٹ آپ مارو اندھیرے میں تو بعض اوقات شیڈ بنتا ہے. یہ شیڈ بن رہا ہے نا, یہ چاروں طرف یہ اس طرح کے وہ گرد ہوتی ہے, لیکن وہ بتی کے شیڈ میں نظر آتی ہے یا سورج کی دھوپ میں وہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو اڑ رہے ہیں نا, یہ کیسے ہیں کہ وہ بغیر اس کے نظر بھی نہیں آتے. یہ جو اڑ رہے ہیں یہ سب یہ ذرے ہیں. تو جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا, بہت معمولی سی مقدار میں نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, اور اسی طرح گناہ. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. گناہ تو دھڑلے سے ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی احساس بھی نہیں, ہم اتنا ایزی لیتے ہیں کہ احساس ہی نہیں کرتے اس کا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, نیک بنا دے ہم سب کو. تو بوٹیاں قربانی کی جو بھی ہو ضائع نہیں کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا اب جب قربانی ہو ہی رہی ہے اور دے ہی قربانی رہے تو گوشت بھی اگر حقدار ملتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے. بھلے فریج میں اگر رکھا بھی ہے تو فریج کے بعد بھی ایسے حقدار تو ہوتے ہیں بیچارے غریب غربے یا سادات کرام کی نظر کرنے کے لیے, بھلے آپ 2-4 دن فریج میں رکھ لیں. جب یہ تازہ تازہ گوشت کھا چکے ہوں گے تو پھر اس کی بھی قدر ہوگی, گاہک نکلیں گے اس کے بھی. خالی پتہ ہو نا کہ بھئی آپ ان لوگوں کے لیے فریز کرتے ہیں دینے کے لیے, بڑا فریزر اسی لیے رکھا ہے کہ بعد میں دیں گے, پھر دیکھنا آپ کو لائن لگے گی جاننے پہچاننے والوں کی. تو دیں یار, رائے خدا میں دینے کے دین ہے یہ. اور جو پسند آئے کہ میں کلیجی کھاؤں تو کلیجی ہی دے دیں, نہیں دیں گے آپ کی مرضی.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिल्कुल देना चाहिए और दिल खोल कर देना चाहिए, मगर आपने जैसे फरमाया कि मुस्तहब है, यानी बेहतर है, कार सवाब है कि अगर इस तरह 3 हिस्से करे और मुस्तहिकीन को दे, गरीबों को दे, रिश्तेदारों को दे, आम मुसलमानों में बांटे। लेकिन अगर होता यह है कि चूँकि एक मुस्तहब है, अगर किसी ने पूरे के पूरा ही मतलब कि गोश्त अपने पास रख लिया तो भी गुनाहगार नहीं है। अब जिसने रख लिया नहीं दे रहा किसी को भी, अब नीचे रश भी लगा हुआ है, लोग आ भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, कुछ आसपास वाले भी कर रहे हैं, अब नहीं दे रहा, तो ना देने की सूरत में जो उसकी बुराई बयान की जाती है कि अब यार भूखा आदमी पूरा साल खाता पीता रहता है, अल्लाह ने इतना दिया है, कुर्बानी का गोश्त भी घर में डाल कर बैठ जाता है, पता नहीं कैसा आदमी। अल्लाह पैसा दे तो दिल भी देवे आदमी को यार। इस तरह करके जो जिसकी गिबतें की जा रही हैं और इस तरह मतलब उसके बारे में बुराइयां बयान की जा रही हैं, उनके बारे में क्या फरमाएंगे आप? हर एक ये खता पर है, बल्कि गिबतें कर रहे हैं, तोहमतें भी धर रहे हैं, ये इसे तोहमतें भी होती है इसमें। तो ये तो इनको तो तौबा करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दिल आज़ारियाँ भी इसमें मुसलमानों की होती हैं, बदगुमानियाँ इसमें। बहार शरीयत तीसरी जिल्द पेज नंबर 345 345 जिसमें कुर्बानी के जानवर का बयान है, बहार शरीयत का 15वां हिस्सा। तो इसमें लिखा है पेज नंबर 345 पर, अगर उस शख्स के जिसने कुर्बानी की अहलो इयाल बाल बच्चे बहुत हों और साहिब वुसअत नहीं है, इतने बेचारे के पास गुंजाइश भी नहीं है, तो बेहतर यह है कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों ही के लिए रख छोड़े। अब तो उसके लिए बांट देना मुस्तहब भी ना रहा ना, जैसे खुद अपने ही बच्चे बाल बच्चे ज्यादा है और खुद बेचारा है भी नहीं इतनी वुसअत, कुर्बानी कर ली है ठीक है, लेकिन शरई तौर पे भले वो गनी है तो वो कुर्बानी कर, लेकिन हर गनी इतना तो नहीं होता ना कि जिसके बाद जाने के माल की बरसात हो रही हो, तो गुजारा होता है। तो इस तरह मतलब है कि वो भले रख छोड़े उसके लिए बेहतर है। या फिर वो क्या नहीं भी, अगर उसके बाल बच्चों का और ये उज़्र नहीं भी है तब भी रखता है, तो एक खिलाफ मुस्तहब काम करता है कि मुस्तहब ये कि वो बांट देता। तो जो मुस्तहब के खिलाफ करता है तो इसको बुरा भला कहना, व्हाट इज दिस, ये तो मतलब बड़ी खराबी की बात है। बल्कि अगर कोई मतलब सुन्नत भी छोड़ता है तो आप मुतसिब थोड़ी हैं, या कोई वाजिब भी तर्क करता है, या जो फ़र्ज नमाज पढ़ता है, आप खुद कितनी पढ़ते हैं नमाज़ें, फजर में उठते क्या ना, आपकी अपनी नमाजों का ठिकाना नहीं है फर्जों का। और जो बेचारा मुस्तहब छोड़ता है और नहीं कर रहा अमल उस पर, तो इसको बुरा भला कहने की आपको इजाजत किसने दी यार? यानी आपको जानवर का गोश्त तो मिला कि नहीं मिला, अपने भाई मुर्दा भाई का गोश्त खाने पर तुला हुआ है वो। हाँ नहीं, इसे करते हैं मतलब ये नहीं, इतनी नाशुक्री भी है कि जैसे वो देंगे भी ना तो इनका पेट नहीं भरता। ये बिल्कुल तजर्बे की बात है। ये हड्डी और बोटी पकड़ा दिए, छिछड़े डाल दिए, इतना सा दिया, दिल बहुत छोटा है, कंजूस लोग हैं ये। अल्लाह ने इतना माल दिया इनको, तो अपने को देखो इतना दिया है, यूं भी करते हैं। ये चीजें औरतों में होती हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, यानी कि इतनी नाशुक्री। एक बोटी दी, एक हड्डी दी यार, ये हड्डी बोटी खाली इसको एक तो मुबालगा बड़ा अच्छा ना कर, मुबालगे का भाई उलट क्या है मुबालगा। तो ये बहरहाल ये कि ये घटा के बयान करते हैं, एक तो बड़ा चढ़ा के बयान करते हैं ना, बिल्कुल घटा के हड्डी और बोटी टिका दी है, चिचड़ा डाल दिया। चर्बी को चिचड़ा बोले, चर्बी कीमती होती है। अस्तगफिरुल्लाह ऐसा नहीं बोल रहा। बहार शरीयत जिल्द तीसरी पेज नंबर 66 तिरमिजी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीया करो यानी गिफ्ट दो कि इससे सीने का खोट, सीने का कीना, मेल जो दिल में होता है सीने में, तो सीने का खोट दूर हो जाता है। और पड़ोस वाली औरत पड़ोसन के लिए कोई चीज हकीर ना समझे, अगरचे बकरी का खुर हो। इसी के मिस्र बुखारी शरीफ में भी
19 से मरवी, यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ में भी मौजूद है इस तरह की। मतलब हदीस शरीफ का ये है कि अगर थोड़ी चीज़ मुयस्सर आए तो वही हदिया करे, यानी गिफ्ट में दे। ये ना समझे कि ज़रा सी चीज़ क्या हदिया की जाए, या ये कि किसी ने थोड़ी चीज़ हदिया की तो उसे नज़र हकारत से ना देखे। ये ना समझे कि ये क्या ज़रा सी चीज़ भेजी है। इस हुक्म में ख़ास औरतों को मुमानात फरमाने की वजह यह है कि इनमें यह मादा बहुत पाया जाता है, बात बात पर इस किस्म की नुक्ताचीनी किया करती हैं, और उमूमन जो चीज़ें हदिया भेजी जाती हैं और वो औरतों ही के कब्ज़े में होती हैं। लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि पड़ोस वाली को चीज़ भेजने में ये ख्याल ना करे कि कम है, जो भी दिया वो मोहसिन है आपका, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसका भी शुक्र अदा करें। मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, ये हदीस से पाक है कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र भी अदा नहीं करता। तो बंदे ने दिया तो आप शुक्रिया भी अदा करते होंगे, थैंक यू भी बोलते होंगे, थैंक यू, और फिर ऊपर से थैंक यू फेंकते होंगे इस पर तरह तरह की तोहमतों के पत्थर। ऐसा नहीं करना है। आपने जो ये अभी इरशाद फरमाया और ये जो हदीस भी बयान फरमाया, शरह बयान फरमाया, औरतों का तस्करा है। उमूमन मर्द जो होते हैं ना घर में हुजूर, ये इस बात को महसूस कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं, ये गलत बोल रही है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अब मर्दों को आप कुछ नसीहत करेंगे कि अगर देख रहे हैं कि घर में मतलब कोई भी घर में हमारी खातून है, औरत है, अगर ये इस तरह की बातें करिए, हाँ हाँ अब ऐसा वैसे ही हैं, अब ये यहाँ में यहाँ मिलाने के बजाय और ये औरतों वाली हरकतें करने के बजाय इससे ना चाहिए कि ये एक अच्छे और नरम अंदाज से ही सही उसको समझा दे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब दिया तो है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्यों मतलब कि इतनी नाशुक्री कर रही हो, क्यों इसने उसकी बुराई कर रही हो, क्यों इतनी गिबतों में पड़ रही हो। यूँ करके मर्द को ना चाहिए कि अपनी बीवी की या अपनी, अगर माँ है तो माँ का बेटा भी पता नहीं अब कोई ऐसे नरमी से कैसे नसीहत करेगा या अर्ज़ करेगा पता नहीं, या बहन कर रही है तो भाई। तो घर के मर्दों का भी यहाँ कुछ रोल बनता है या नहीं बनता कि वो इस तरह की बातें जो घर में हो रही होती हैं, अगर सास कुछ बोल रही है तो ससुर बोलेगा क्यों बोल रही है। अगर बेटी के मतलब के घर वालों ससुराल वालों ने अगर कुछ ऐसा किया है भी तो कोई ठीक है, अभी बोला हुआ है नहीं, खामोश रहो यार, अगर नहीं समझ में आता तो खामोश रहो। यूँ नसीहत करनी चाहिए, समझाना चाहिए मर्दों को। अल्लाह करेगा मर्दों का जहन ऐसा कि वो भी उसको थोड़ा या कम ना समझते हो, या सब नहीं समझते होते ना, जब वो दुगाई बोलती है ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ सही बोलती है, वाकई इतना सा बेच दिया। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर कोई वाकई समझदार आदमी है तो फिर भी वो औरत से पहुंचना जो है ना घर में, ये सबके बस का काम नहीं होता। फिर औरतें वो आम तौर पे नाक़िसात होती है, तो यूं इनमें थोड़ी समझ मर्दों की तरह वो नहीं होती वुसअत, ये बुरा मान जाइए। अब वो हो सकता है कि घर का माहौल खराब हो, किड़किड़ शुरू कर दे। आइए समझाने बेटे, कौन सा गलत कहती हूँ मैं, आइए समझाने बेटे, तो ये बोल दे आपको ना समझ पड़े, अभी आप बैठो ना, पूरा साल गोश्त कभी देखा है यूँ कभी आता है तो यूँ करके बेचारे को चुप करा। लेकिन जहाँ तरकीब बन सके, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये एक बात ही नहीं है, कई बातों में यकीन माने इतने गुनाह हो रहे होते हैं घरों, अल्लाह की पनाह। औरतें ऐसी सी बातें करती वाकई समझाने की बात होती है, कुछ सुझका नहीं पड़ता कि बंदा समझाए कैसे इसको कि ये बात एक गुनाह करेगी ना, समझाने जाएंगे 2 गुना और चढ़ देगी, ये भी खतरा होता है। तो बहुत मूड देखकर, माहौल देखकर ही आदमी समझाए, नहीं तो बात कुफ्र बोलने का खतरा होता है। कुफ्र बक दे तो फिर निकाह के बांधे हो जाए, मसले हो जाए ना, सही कुफ्र बक दे तो, और इस निकाह भी अपने समझे, लेकिन खुद ही इतना बड़ा मतलब कुफ्र तो कितना खतरनाक है। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे। बहुत बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। मन समता नजा, प्यारे इस्लामी भाइयों, जो चुप रहा उसे नजात पाई। अल्लाह इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता कर दिया हमें। बात बोलना वाजिब होता है जी,
जहाँ जन्ने गाली हुआ का ना कि ये गुनाह कर रही है या कर रहा है, मैं समझाऊंगा तो ये बांध जाएगा, तब तो उसको समझाना वाजिब होगा। तो बोलने से भी समझाया जा सकता है, इशारे से मुमकिन है, इशारे से समझा दे, या फिर लिख के समझाना, ने जैसी जरूरत वैसे उसको समझाना होगा, है ना। इशारा के बाद होगा, समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग हो तो अस्तगफिरुल्लाह समझ जाए। ये ऐसे कितने सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आम तौर पर कुर्बानी के अयाम में देखा गया है कि लोग खून वगैरह से बचने के लिए या गोश्त की कटाई वगैरह का जब सिलसिला हो रहा होता है तो ऐसा लिबास पहनते हैं कि जिससे रानें वगैरह ज़ाहिर हो रही होती। इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत रहनुमाई फरमाइए कि ऐसे मौके पर लिबास इस किस्म का पहनना ये कैसा है? ये गोश्त फरोश जो है ये हो सकता है इस तरह के लिबास, ये घुटने या राने खोल के करते होंगे काम, तो ये तो वाकई नाजायज़ है, गुनाह का काम है। और ऐसों की तरफ इस जगह पे नज़र डालना ये भी गुनाह का काम है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, ये अब ज़ाहिर है कि आप गुजरे तो उसको आप कहेंगे तो ज़रूरी नहीं कि माने ये, तो आप अपनी नज़र बचा कर निकल जाए। और अगर ज़न्ने गालिब है कि ये मान जाएगा बताने से, आप जानते हैं मसलन के उस है सादत बंदे शरीफ आदमी है, तो उसको तवज्जो दिलानी चाहिए कि ये गुनाह का काम है, वरना फिर चुपचाप निकल जाए निगाहें नीची करके। और निगाह नीची करना भी तो नहीं आती ना यार, ये भी बड़ी मुसीबत है। यूँ फाड़ के मतलब दीवार को भी फाड़ के नज़र हमारी आर पार हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस, अब नात ख्वान भी बाज़ वक़्त नात पढ़ते हैं तो ऊपर देख के पढ़ रहे होते हैं, आदत पड़ी होती है। तो नीची नज़र की अहमियत है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए वो सलाम में ना, नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीची नज़र रखने की अदा, तो इस पर लाखों सलाम है। नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद, नहीं इन पर दुरूद, नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद, तो आसान सा है। और ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। और जब ऊपर देखते थे तो अर्श मौला से पार लोहे महफूज की इबारतें पढ़ लेते थे, है ना। ऊंची बीनी ना ऊंचा देखना की रिफ़अत यानी बुलंदी पे लाखों सलाम। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऊंचा भी देखे, सामने भी देखे, किसी के चेहरे को भी देखे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ, वरना ये कि कुछ भी नहीं है। तो ये जहन में रखें कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि फजूल नज़री जो है ना, बिला ज़रूरत इधर देखना होता, इसे क़यामत के दिन हिसाब है, और हिसाब जिससे हुआ ना वो मारा गया है, अब बच नहीं पाते। इधर उधर देखिए बगैर गुजारा ही नहीं है, नीची नज़र ज़्यादा देर रहती ही नहीं है। कोशिश बस जारी रखते हैं, कभी न कभी इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि नज़र नीचे रखने की आदत पड़ जाएगी। सबको कोशिश करनी चाहिए, और हर जगह, और ख़ासकर जहाँ हम ऐसी जगह ऐसी चीज़ें हों जिससे बदनिगाही का खौफ हो, जैसे बाज़ार है, औरतें ये वो सब होती हैं, तो ऐसे मौके पर तो ख़ास कर आदमी नीची नज़र रखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करे, कोशिश करे। बीनी नाक को भी बोलते हैं, लेकिन बाज़ों ने लिखा ऊंची भी, देखो ये कुरान की आयत नहीं है कि जिसके मतलब शरह जो है वो उससे इख्तिलाफ किया जा सके। मेरी जो मोटी कलमा था ना, यहाँ नीची नज़रों का है, नीची नज़रों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़त पे लाखों सलाम। अगर आँख का तस्करा होता ना तो नाक शरीफ का जिक्र खैर क्या नीचे, अच्छा नीचे आँखों लिखा हुआ है, आए हाय, हाँ, तो फिर वो बीनी सही है। मैं नीची नज़रों समझाऊं, अच्छा, नीची आँखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़त पे लाखों सलाम। तो अब ये कि नीची आँखों न आँखें नीची आँखों की शर्मो हया पर दुरूद रहमत, और ऊंची बीनी नाक मुबारक आपकी कदरे ऊंची थी,
लेकिन इतनी ऊंची इस तरह की नहीं थी जो बेडोल हो। असल में वो नूर का हाला था, हाँ नूर का हाला, जिसकी वजह से ऊंची महसूस। नूर का एक दायरा रहता था मुबारक नाक पर, तो यूं ये ऊंची बीनी, बीनी असल नाक को बोलते हैं, तो यूं ऊंची बीनी पे लाखों सलाम। तो फिर वो ऊंचा देखने वाली, अगरचे वो है तो दुरुस्त कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जब ऊंची जाती थी तो हम नहीं देख सकते, लेकिन आका की नज़र वो कुछ देखती थी। लेकिन यहाँ शायद मुराद फिर यही हो कि आँखों का है तो नाक मुबारक का तस्करा हो। जज़ाकल्लाह खैर। फिर भूल जाऊँ तो फिर याद दिला देना। अब भूल जाता हूँ, हो सकता है पहले भी आपने याद दिलाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है और आज शब आरफा भी है। यहाँ पर मौजूद हाज़रीन इस्लामी भाइयों में से चंद एक इस्लामी भाई आपसे सवाल कर्ज करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शहजाद अली अत्तारी है, मैं औरंगी टाउन कराची से हाज़िर हुआ हूँ। आपकी खिदमत में बापा जान सवाल अर्ज़ ये है कि बकरा ईद के दिनों में रेस्टोरेंट वाले कबाब बोटियाँ बनाते हैं और सबके गोश्त मिक्स हो जाते हैं और वज़न के बराबर वो उन्हें सबको गोश्त को वापस दे देते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है? ये तो बिल्कुल ही यानी कि ज़ाहिर नाजायज़ है। किसी का कुछ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का कुछ, और सबके बकरे हों तब भी मिक्स करने की इजाज़त नहीं है। सबका अलग अलग वो बनाना होगा, लिख कर रख दे, नंबर डाल दें, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए इनको कि सबका अलग अलग हो। भले चार्ज ज़्यादा ले कि भाई तुम्हारा ये अलग से मैं बनाऊँगा, वरना ये करते वाकई इसे मिक्स कर देते हैं। कुर्बानी का गोश्त होता है इसलिए कोई बोलता भी कुछ नहीं हुआ, यूं मतलब एक गुनाह का काम है, नाजायज़ है। अब वो यूं करने वाले ये सोचेगा मैं अगर ये बोलूँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा लूँगा, तुम्हारा अलग बनाऊँगा, तो ये दूसरी जगह चले जाएगा, तो भले चला जाए। हमें शरीयत हाथ से दामन शरीयत का नहीं छोड़ना चाहिए। बंदा जाता हो तो भले चला जाए, अल्लाह रोज़ी देने वाला, बंदा क्या देगा, लेकिन इतना जज्बा होना चाहिए। और फिर ऐसों से करवाना भी नहीं चाहिए, खाली ये नहीं कि वो गुनाहगार है, हमें पता है कि मिक्स कर देगा तो अब हमारा लेना भी तो नाजायज हो गया ना, हम भी खा नहीं सकते ना इसको। तो दोनों ही तरफ मसला है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वैसे इसका इब्तला है, हाँ ये बहुत मतलब ये कि ऐसा हो रहा है, तो इसका कोई मुख्तसर सा 30 सेकंड का मुमकिन हो ना तो क्लिप बना लिया जाए, इसको वायरल कर दिया जाए इंशाअल्लाह। और इसका नाम ऐसा अट्रैक्टिव रखना चाहिए कि आदमी इसको क्लिक करे। बाद का नाम ऐसा होता है कि मैं क्लिक नहीं करते होंगे, लोग कम करते होंगे। जैसे कुर्बानी का गोश्त के कबाब बनाने का मसला, अब मैं मसला बोलूंगा, आप हुक्म लिख दोगे। अब ये अवाम हुक्म को समझते हैं, ऑर्डर मसले में समझते होंगे, हुक्म में सब नहीं समझते होंगे। हुक्म में हमारे माहौल के लोग समझते होंगे, लेकिन ये कि हमारे यही होता है, इसका हुक्म ये है, उसका हुक्म ये है, तो शायद अवाम कम समझते होंगे इसमें। तो कुर्बानी के गोश्त के कबाब बनाने का मसला, शायद ये अट्रैक्शन रहे इसमें, इसका नाम हो क्लिप। तो शॉर्ट नाम मिल सकता है इसका कोई, अगर कुर्बानी नाम लंबा ही है, कुर्बानी का गोश्त का अगर ना रहे लफ्ज, क्योंकि अगर इस तरह कुर्बानी के अलावा तो ऐसा को होता नहीं होगा कि कुर्बानी के दिनों में होता होगा, लेकिन जाहिर अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा करेगा, इसके अलावा इतनी गोश्त देगा कौन इनको? ये इन्हीं दिनों में शायद ये बाकायदा इनके ठिये लगते होंगे, और जैसे सीजन वाइज वो कस्साब निकलते हैं ना, कोई बैद नहीं है कि इस तरह सीजन वाइज भी बनते हुए, है ना, बनते हैं ना, वो साल में एक ही बार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है, बाज़ दफ़ा कारी साहिबान बच्चों को लेकर
کسی کے گھر ختم قرآن کے لیے جاتے ہیں. بعض اوقات جب پارے کم اور بچے زیادہ ہوں تو ایک پارا 2 بچے مل کر پڑھتے ہیں, صفحہ پلٹ کے پڑھتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سب ادھر سے پڑھ رہا ہے ادھر سے پڑھ رہا ہے اسی پارے میں. تو اس طرح کے مضامین جو ہے نا قرآن کریم میں مضامین ہیں تو وہ ادھوری آیتیں ہیں تو کہیں معنی بھی اس میں بگڑتے رہیں گے. تو طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارے میں سپوز کرو کہ 15 رکوع ہیں تو 7 ایک کو دے دیا 8 ایک کو رکوع دے دیے, اس طرح مطلب ہے کہ تقسیم کر دی جائے, آدھا ہو گیا نا تقریباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان سے پہلے جن سائل اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے ماشاءاللہ نیت کی کہ ہر ہفتے فیضان مدینہ میں جمعرات کے ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں گے اور ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ. اور یہ بھی اسلام بھائی کوئی مدنی فیس دینا چاہیں اگر آپ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. جو آپ ارشاد فرمائیں حضور. تو بٹھا دو ان کو دارالسنہ پہ, بیٹھیں گے نہیں نا. الحمدللہ اس لیے آپ جو دے سکتے ہو دے دیں. 10 دیتا ہوں الحمدللہ میں. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی داڑھی بھی پوری ہے ماشاءاللہ. تو وہ زلفیں آ جائیں, ممکن ہو تو امامہ شریف آ جائے, سنت و برا حلیہ بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن سفر تو اپنا بالکل یعنی کہ ترکیب بن جائے تو میٹھا مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عید کے دنوں میں شرعی مسائل پیش آ سکتے ہیں قربانی کے جانور کے تعلق سے, ذبیحہ کے تعلق سے, گوشت کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو دارالافتاء اہل سنت ہے اس کے ماشاءاللہ مفتیان کرام وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے لیے تینوں دن کے لیے سوالات کے جوابات کے لیے الحمدللہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتے ہیں. تو میں ابھی ٹی وی اسکرین پر آپ کے اسکرین پر ایک سلائیڈ آئے گی تو ان کے نمبر اگر آپ چاہیں تو محفوظ کر لیں. تینوں دنوں میں یہ جو عید کے جو 3 دن ہیں جمعرات جمعہ ہفتہ, تو ان نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ محفوظ کر لیں, کسی وقت بھی کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ نمبر آپ اپنے پاس ابھی ہم اسکرین پر رکھیں, اس کو نمبر کو رکھیں. اور میری مدنی چینل کے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ یہ تصویر کھینچ لیں آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے. تو تصویر کھینچ لیں, پوری اسکرین پہ دیتے ہیں تصویر, تو کھینچ کے رکھ لیں اپنے موبائل فون میں. اور ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ضرورت نہ بھی پڑے, لیکن ضرورت پڑ گئی تو ان دنوں میں پھر آپ کے لیے آزمائش نہ ہو جائے. تو ایٹ اے ٹائم ضرورت پڑ سکتی ہے, قربانی کا جانور بھاگ گیا, اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہو گیا, گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, زخمی ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو اب شرعی مسئلہ پوچھنے بہت ضروری ہوگا. اب ہم کیا کریں؟ صبح 8 سے لے کر رات 7 تک ٹائم ہے, اور ٹائم تو واجبی ہے جی. لیکن مہمان علاقوں میں جو ہے نا یہ تھوڑا اگر رعایت کی جائے نا اس میں ٹائم میں, کہ وہ مطلب رات کا راہی ایک تعداد ہوتی ہے, 7 بجے تو ہوش میں بھی نہیں ہوتے ہوں گے, یہ نکلیں گے رات کے 12 بجے 1 بجے مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں. لیکن اب ظاہر ہے مفتیان کرام راتوں کو جاگنے کا عادی ہوں, یہ ضروری نہیں نا. تو راتوں میں ہمارے یہاں مہمان علاقوں میں 2 بجے سے قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یوں سمجھ لو 2 بجے 1 بجے 3 بجے رات میں قربانیاں یہ لوگ کرتے ہیں, یعنی 11ویں رات 12ویں رات. اور اس بار شاید زیادہ چانس ہے کہ جمعرات کو عید ہے, تو جمعے کو ہے عید کا دن, عید کی دوسری دن. عید کے دوسرے دن عام طور پر بڑے جانور زیادہ کٹتے ہیں, لیکن جمعے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ یہ صرف شاید رکاوٹ پڑے گی کہ رات کو یا تو زیادہ قربانیاں کریں گے لوگ تاکہ وہ جمعے کی نماز میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے. اچھی بات ہے. اور یا تیسرے دن یہ زیادہ کریں گے ہفتہ, یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اور رات میں ذبح کرنا گناہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں رات میں قربانی, وہ بیچارے کنفیوز ہی رہتے ہیں. قربانی سے تو تعلق ہی نہیں ہے رات کا, رات ہو یا دن ہو. اصل ذبح رات کو مکروہ ہے,
मकरू यानी नापसंदीदा है, गुनाह नहीं है। नापसंदीदा वाला मकरू मकरू तंजीही है, जो मकरू तहरीमी होता है ना वो गुनाह होता है। अच्छा, फिर अगर रात को ये क्यों मना है मकरू तंजीही कि वो रगों का इतना शायद कंफ्यूजन हो, समझ ना है, बराबर रोशनी ना हो तो कि सही कटी ना कटी, ये एहतिमाल होगा, एक कंफर्मेशन नहीं है यहाँ। इसलिए अगर रोशनी वाजिबी है और सब नजर आ रहा है तो अब रात को ज़बा करना ये मकरू भी ना रहा, तो कुर्बानी से तो इसका वैसे ही ताल्लुक नहीं। लोग कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। ये सारे साल के लिए मसला है कि अंधेरे में ज़बा ना किया जाए। अच्छा, हफ्ता तीसरा दिन है, मैं मशवरा करूं हाजी इमरान से कि क्या करना है तीसरे दिन मदनी मुज़ाकरे, भूल ही जाता हूं यार। नहीं, मदनी मुज़ाकरा हमने उसमें रखा है। अब आज आखिरी रात है आपके पास, कल तो है बड़ी रात, कल बड़ी रात को ये नजर नहीं आएंगे, कल हम होंगे और थोड़े से इस्ताई भाई होंगे शायद। हम मदनी मुज़ाकरा मुख्तसर करते ज़रूर हैं, ये ईद करते हैं, लेकिन करते हैं बस, करते हैं, ये नहीं होते, ये बेचारे तलबा किराम इलाकों में भी इलाकों में खा लें, ये वो मसरूफ, समझे। तो आज जो कहना है कह दें, हफ्ते को हम लोग होंगे थके हुए, हम लोग नहीं, सारी कौम हमारी जो है थकी हुई होगी तकरीबन। उधर ईद की जो हमने वो शोरिल बनाई है, ईद की नशरियात की, उसमें हमने हफ्ते का मदनी मुज़ाकरा रखा है। अच्छा, ये आपकी ईद की नशरियात में है और ये चल रहा है दुनिया भर में, जहाँ जहाँ हमारी वीडियोस जा रही हैं। बाहर मुल्कों में तो थकन नहीं, यहाँ भी मतलब कि हम अपने तौर पर मदनी मुज़ाकरा इंशाल्लाह कर रहे हैं, ये तो हमने रखा हुआ है, ये वीडियो ये तशहीर हो रही है इसकी। अच्छा, तो हाँ, मदनी मुज़ाकरा ये अपने, क्योंकि पहली रात जो है ईद की यानी जुमे रात को ईशा के बाद जो लाइव सिलसिला है तराने मुस्तफ़ा के, और दूसरी रात ज़ाती तजर्बात है जुमे को, और तीसरा ये मदनी मुज़ाकरा है हफ्ते की रात को। तो ये बना हुआ है, इतवार को इंशाल्लाह ईशा के बाद फेस टू फेस प्रोग्राम है। तो ये चारों रातें जो है ना, क्योंकि छुट्टी आ रही है, ये सब है, तो इतवार को हफ्ते को हमें, तो इतवार भी छुट्टी है। हफ्ते को हर इस्लामी भाई तो खाले नहीं करता, घर के अवाम ये वो, बाहर मुल्कों में फारिग भी हो गए होंगे इस्लामी भाई, तो इतवार छुट्टी है, तो अगर कोशिश करेंगे तो आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो खालों में मसरूफ नहीं होते वो तो आना चाहिए उनको। खालों में तो मसरूफ नहीं होगा ना हुजूर, मतलब कि हफ्ते को इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा है, तो हफ्ते को तो ईद का तीसरा दिन है, तो वो तो ख़त्म होगी, खाले उठ गई जो उठनी थी। अब तो जो काम है बेचारे गोदाम वालों का काम शुरू हो जाएगा, जहाँ खाले पहुंची हुई होंगी। तो इंशाल्लाह निगरान और ज़िम्मेदारान कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि छुट्टी है तो कई नए इस्लामी भाइयों को मदनी मुज़ाकरे में अगर लाना चाहेंगे तो ले आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये जो नंबर बयान किए गए ना, ये सिर्फ कुर्बानी के मसाइल पूछने के लिए, इस पर कोई यानी कि और मसला ना दरियाफ्त करे। ये ख्याल रखना है निकाह के, तो तलाक के, तो जागीर, तो जायदाद, तो मिरासत, और ये सिर्फ कुर्बानी के मसाइल दरियाफ्त करने, ये स्पेशली पैकेज है स्पेशल कुर्बानी के मसाइल के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से, बड़े से, प्यारे से जानवर के पास, और इसकी एक खुसूसियत है। इसकी खुसूसियत क्या है, इसके फेस की तरफ जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खुसूसियत क्या है। और थोड़ा सा डर के और संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके फेस में ही इसकी खुसूसियत है, कहीं सींग विंग ना मार दे। और सींग मारने से मुतालिक ये 2 सींग नहीं मारेगा, बल्कि ये 3 सींग मारेगा, क्योंकि ये 3 सींग वाला है। अब आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे ये इसका एक सींग ये रहा, और एक सींग ये रहा, 2 सेंटर में एक सींग है, और एक सींग यहाँ पर है। ये 3 सींग वाला है। तो ये एक तो इसकी खुसूसियत है नंबर 1। दूसरी, हर जानवर के 2 कान होते हैं, लेकिन इसके 2 कान तो हैं, इसके साथ 2 छोटे छोटे कान और हैं। एक ये रहा, ये देखें, एक कान ये रहा बड़ा, और एक ये छोटा। तो ये हो गए 1 2 3 4, 3 सींग और 4 कान वाला जानवर है ये। अब ये खुसूसियत है या ऐब है, ये तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे। तो क्या ये डिफरेंट चीजें होने की वजह से क्या इसकी कीमत को बढ़ाया जा सकता है? और ये कीमत में भी ज्यादा होते हैं, यहाँ पे डिमांड की जाती है
کہ یہ کیونکہ خاص ہے، اس میں یہ خصوصیات ہے تو اس کے پیسے زیادہ مانگے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نا قربانی کا جانور جو ہے وہ پل صراط پر قربانی کرنے والوں کے لیے سواری ہوگا. اب یہ جو فربا جانور اور قربانی کے لیے بڑے اور خوبصورت جانور سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پل صراط پر اگر سواری ہوں گے تو فربا اور موٹے اور طاقتور ہونے چاہیے. لیکن بعض لوگ چھوٹے جانور پسند کرتے ہیں. بڑے جانوروں میں بھی چھوٹی نسلوں کے جو جانور ہوتے ہیں جنہیں گینی اور کوڈو نسل کے جانور کہتے ہیں. جیسے میرے ساتھ یہ آپ ایک خوبصورت سا گینی بچڑا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ماشاءاللہ ہے بھی خوبصورت اور اس کو خوبصورتی سے سجایا بھی ہوا ہے. پوچھنا یہ تھا کہ اگر پل صراط پر یہ جانور جو ہیں اگر یہ قربانی کرنے والوں کے لیے سواری ہوں گے تو یہ جو گینی اور چھوٹے قد کے اور بونی نسل کے اور کوڈو جو جانور ہے یہ تو قد میں بھی چھوٹے ہیں اور اتنے طاقتور بھی نہیں، تو پھر یہ کیسے پل صراط پر طاقتور سواری کے طور پر کام آئیں گے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا گینی جانور جو ہے وہ کیا پل صراط پر اسی طرح قربانی کرنے والوں کو پل صراط پار کروا دیں گے؟ اللہ اللہ. ایک تو وہ 3 سینگ تھے اس کے، اچھا وہ تیسرا کچھ برابر سوچا نہیں پڑا. تو 4 کان، تو ایک طرف کے کان تو دکھا ہے، تو یہ ایسا عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو حسن ہے، ایک نوینتا ہے، یونیک. تو اس میں قربانی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا. اور اب یہ کہ میں ان کو مہنگا بیچنے کی اجازت دے دوں، یہ بھی شاید آپ نے سوال کیا اس میں کہ تھا مہنگا تو نہیں ہے، سستا بیچو. ویسے مہنگائی ویسے بڑھ گئی ہے، واجبی دام، ہر ایک کو واجبی دام رکھنا چاہیے. اور رہا یہ کہ گینی کے تعلق سے یا تو قربانی کا جانور انہیں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بندہ قربانی کرے خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ پل صراط پر سواری کا کام دے گا. اب دیکھو یہی اگر گینی یا یہ جو آپ نے وہ دکھایا جاندار شاندار، یہی پل صراط پر کھڑا ہو جائے گا، یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا کہ وہ اس کی کیا صورت ہوتی ہے، یہ بھی کیسے طے ہو جائے. تو جانور چھوٹا بڑا یہ نہیں، خوش دلی کے ساتھ. اب کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے اتنا بڑا جانور لینے کا. گینی مہنگی ہوتی ہے، گینی اپنے حسن کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا جانور جو ہے شریعت کے مطابق اور اس کی اپنی بیچارے کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ مہنگا لا سکے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو یہ بھی پل صراط پر تو کام دے گا نا اس کو. اللہ کی رحمت سے ہوگا وہی جو رب چاہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. ہم اس جانور کے بارے میں سوچ رہے ہیں حضور کے قربانی کا جانور یہ پل صراط پار کرائے گا، تو اب جس نے اپنی زندگی میں 50 جانور ذبح کیے، قربان کیے، اس نے 50 بقرعید بنائی ہیں، تو 50 کے 50 مختلف جانور، تو اب اللہ پاک اس کو کس جانور کے ذریعے پل صراط پار کرائے؟ تو کیا یہ کہہ سکتے کہ پل صراط پر جو جانور ہوگا وہ تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہی اسی جانور اسی شکل میں اسی قد کاٹ میں ہی آئے گا اور وہی آئے گا. تو اس کا تعین ہو سکے گا؟ ہم کیا کر سکتے تعین اس کا؟ اللہ پاک کی رحمت سے ظاہر ہے کہ اس سے بہتر ہی آئے گا. یہ تو کہاں چل سکے گا یار؟ اس بکرے پہ بیٹھ جاؤ تو بعض بکرے سے چھوٹے ہوتے ہیں دب جائیں بیچارے، بندہ بیٹھ جائے اس پہ تو یہ اللہ پاک اس کو طاقت دے گا. اب یہ تو دیکھو آخرت کے معاملات اور دنیا کے معاملات بہت فرق ہے اس میں. وہاں جائیں گے تو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ کرے گا اچھا اچھا دیکھیں وہاں. پل صراط کا معاملہ بڑا نازک ہے، ایزی ہم لیتے ہیں اس کو، نازک بہت معاملہ نازک ہے. لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے جہنم میں، بنا ہوا جہنم پر ہے وہ، اور بلیڈ کی دھار کی طرح تیز ہے، تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے وہ، اتنا تیز اور باریک. اور اب کسی کے لیے چوڑا میدان بن جائے گا یہ، اللہ جس پر رحمت کرے گا. وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، روشنی بھی نہیں ہوگی.
لیکن اللہ پاک جس کو چاہے گا وہ اس کے لیے روشنی کا بھی انتظام ہوگا، نور کا انتظام ہوگا، اور یہاں تک کہ جو سب سے ادنا یعنی کمزور مسلمان ہوگا جس پر رب کی رضا، تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے روشنی نکلے گی اور وہ اس روشنی میں چلتا ہوا کسی طرح بھی پار کر لے گا. اور انشاءاللہ ہم تو آقا کے صدقے میں ہے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل کے اس پار اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو اسی لیے تو اعلی حضرت جھوم گئے نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ظاہر ہے جو بیچارے قربانی نہیں کرتے پل سے تو ان کو بھی گزرنا ہے. اب وہ اللہ پاک اپنے حبیب کی دعا کے صدقے میں ہم سب کو پار لگا دے گا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے. ورنہ ہماری قربانیوں میں اخلاص کتنا، ہماری نیکیوں میں اخلاص کتنا. بس اس میں اخلاص ہے کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح، اے کاملو ماہیت پانی کی آخر، یم سے نم میں کم نہیں. یعنی ہوں مسلمان، اس میں اخلاص ہے، 100% اخلاص ہے. بس کرم ہو جائے کہ ہیں مسلمان. باقی عبادتیں ہر ایک اپنی اپنی عبادت پر غور کرے، کتنا اخلاص ہوتا ہے، کتنی اس میں دل جمعی ہوتی ہے، کتنا خشوع ہوتا ہے. نیل بٹا نیل معاملہ ہے. عمل میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. یا رسول اللہ عمل کے بازار میں تو ہمارا سودا نہیں بنا، ہم ہار گئے سودے میں، یعنی ہم سودے میں فیل ہو گئے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. عیبی نہ جو عیب سے بھرپور ہو، عیب والا. ہم لوگ عیب دار ہیں، کتنے گناہ، کتنی خامیاں، کتنی کھوٹ، کتنی خرابیاں ہمارے اندر ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا دامن بڑا وسیع ہے، گناہگار آ کے چھپتے ہوں گے اس میں، ہمیں بھی چھپا لیجئے گا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان میں تردد نہیں ہونا چاہیے. ایمان بالکل 100%، جتنے بھی پرسن ہوتا نا وہ پرفیکٹ، بس وہ پرسن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. جو بھی رسول بھیجے اس نے سب حق ہیں، جتنے نبی بھیجے سب حق ہیں، فرشتے حق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. جو بھی مطلب ضروریات دین ہے سب پر ہمارا ایمان ایمان ایمان، بالکل شک شبہ گنجائش نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مخلص ہیں اپنے ایمان میں. کفر کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی رغبت نہیں. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم بس ہر آن ہر سانس ہم مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور رب کے کرم سے رہیں گے، اس کے حبیب کی نظر سے رہیں گے، غوث پاک کے صدقے میں رہیں گے، صحابہ و اہل بیت کے طفیل رہیں گے. مسلمان کبھی بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، یہ ذہن سب کو رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعرات عید جمعرات کو ہے، لیکن جمعرات ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، اور ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیجیے گا. اور انشاءاللہ عشاء کی اذان، جیسے عشاء کی جماعت ہوتی ہے تو عشاء کی اذان پر اجتماع ختم ہو جائے گا، تو مغرب تا عشاء آپ نے اجتماع میں شرکت بھی کرنی ہے. اور ماشاءاللہ اس جمعرات کو اگرچہ اعلان ہونا ہے، لیکن میں آج اس کا اعلان کر دیتا ہوں. آنے والے ہفتے کو جو رسالہ آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، یہ بڑا خوبصورت، پیارا، معلوماتی، عشق و محبت بھرا یہ رسالہ
अमीर सुन्नत आपने कई दफ़ा सुना होगा 1980 में 1980 में जब हज पर गया था 1980 में जब हज पर गया था, यानी बहुत सारे वाक़यात अमीर सुन्नत साहब ने हज पर जो सुने हैं ना, उसमें कई वाक़यात वो हैं कि 1980 में जो मैं हज पर गया था, पहला अमीर सुन्नत का सफ़र हज 1980, इसका मुतालिक इस रिसाले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात लिखे हुए हैं, नमाज के ताल्लुक़ से, मीना के ताल्लुक़ से, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से और दीगर जो हज के ताल्लुक़ से जो वाक़यात हैं वो हैं। तो आपने ये रिसाला ज़रूर मक़ततुल मदीना से हासिल करना है। आने वाले हफ्ते को इस रिसाले का ऐलान होना जुमेरात को होता है, लेकिन मैं आज ही रिसाले का ऐलान यानी जो तीसरी ईद है हफ्ते को, जी हाँ, तो इसमें ऐलान सुनने के लिए आना पड़ेगा इनको। ऐलान सुनने के लिए भी आना चाहिए और रिसाला लेने की रिसाला लेकर ही आना चाहिए। आज होता ना तो थोड़ा चलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बड़ा मुख्तसर सा रिसाला, ये तकरीबन इसके 17 सफ़ात हैं। ये कार्ड पर भी जो इसका छोटा सा मुख्तसर सा मैटर है, ये मिलाकर 17 है। तो ये ज़रूर आपने रिसाला हासिल करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, अगर बावजू शख्स ने नाखून काटे क्या वो दोबारा वजू करेगा? नहीं, मुस्तहब है वैसे भी कि नाखून काटने के बाद अपनी वो उंगलियों के पोरे धो ले, वजू हो या ना हो। अमीर अहले सुन्नत, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये बकरा लंगड़ा कर चल रहा है, तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? हाँ, ये लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन इसमें इतनी चलने में कि इसकी कैफियत है कि कुर्बान गाह तक ये चलकर जा सकता है। तो पाँव भी जमीन पर पाँव टेक कर, ऐसा लंगड़ा के जो जमीन पर पाँव टेक कर कुर्बान गाह तक जा सकता हो तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। लेकिन ये कि ये मामूली ऐब है, बेहतर ये कि ऐसा ऐब भी कुर्बानी के जानवर में ना हो। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपने कुछ दिन पहले मदनी मुज़ाकरे में अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब आयत पढ़ने की तरगीब दिलाई थी, तो ये फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पढ़नी है या नमाज मुकम्मल होने के बाद? और जो इस्लामी भाई आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और सुना है कि जो आयतुल कुर्सी नमाज के बाद पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान मौत का सिर्फ फासिला है, तो पहले आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाए या इस आयत को पढ़ा जाए? इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। फ़र्ज़ के सलाम फेरते ही दिल पर सीधा हाथ रखने, दिल की जगह पर, और ये आयत मुबारक पढ़ें 11 मरतबा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो दिल की बीमारी होगी तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा, अगर दिल की बीमारी नहीं है तो इंशाअल्लाह नहीं होगी इंशाअल्लाहुल करीम। और ये मुस्तकिल इसकी परमानेंट आदत बना ले ये पढ़ने की। आयतुल कुर्सी शरीफ जो है ये फर्जों के बाद ही पढ़ना जरूरी नहीं है, यानी कि सुन्नतें नफल पढ़ के भी पढ़ सकते हैं। और जो दीगर भी तो इसके अज़कार हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह फातिमा, भी फर्जों के बाद जरूरी नहीं है, सुन्नतें नफल पढ़ के इत्मीनान से पढ़ें। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की शादी है और उसने शादी हॉल बुक करवाया है 1,20,000 का, और 20,000 उसने एडवांस जमा करवा दिए हैं, और 1,00,000 रुपए वो जब शादी होगी तो देगा, तो क्या वो 1,00,000 रुपए का कर्जदार कहलाएगा? जवाब इरशाद फरमाइएगा। कर्जदार नहीं कहलाएगा, रकम तो इसके अपनी दी तो नहीं, इसके पास है, इसके इख्तियार में बुकिंग कैंसिल भी कर सकता है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि बाजार में देखा गया है बट और रोजड़ी एक साथ पका के फरोख्त की जाती है, तो आया बट खाने वाले शख्स पर ओजड़ी का जो शोरबा है वो अगर वो खाएगा तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? बट उसको बोलते हैं कि ओजड़ी की जो ठोकदार तौलिए की तरह एक मतलब स्किन होती है, तो ये नजासत से बिल्कुल मिली हुई होती है, उसमें नजासत होती है,
इसको अगर जुदा कर दिया जाए तो अब गोश्त बच जाता है, थोड़ा वाइट होता है ये, तो ये बट कहलाता है, ये खाना जायज है। अगर ये नहीं निकाला, जैसे बकरे की आमतौर पर नहीं निकालते, तो फिर कि वो तौलिए जैसी वो जिल्द जो लगी होती है, कुछ वो खानेदार भी होती है जिल्द, तो ये बहरहाल जो भी जिल्द का हिस्सा, सारी जिल्द ये नजासत से मिली हुई होती है, तो ये तो नहीं खानी। तो ये गोश्त जो है ये बट ये खा सकते हैं। अब अगर ये पक्की भी है तो इसका शोरबा भी नहीं खा सकते। अगर वो ओजड़ी, जिसको बट को ओजड़ी नहीं बोलते, तो ओजड़ी जो है इसका खाना नाजायज गुनाह है, चाहे शोरबा पिए चाहे इसकी बोटी खाएं। ये शोएब भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहे हैं कि यौम अरफा को अगर औलाद के लिए दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होती है, तो इस बारे में रहनुमाई फरमाते हैं। यौम अरफा? जी। अच्छा, तो मैदान अरफात में हाजी जो दुआ करता है वो तो उसके लिए तो कबूलियत की बिशारत है। रोज़े अरफा के ताल्लुक से ये लिखा है अपने फज़ाइल दुआ, जो आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वो हाशिया है। फरमाते हैं कि रोज़े अरफा यानी नहुम ज़िलहज्जा, यानी कि 9 ज़िलहज, जैसे कल है, तो रोज़े अरफा 9 ज़िलहज ये कबूलियत दुआ का दिन है। ये आम है हाजी और गैर हाजी के लिए, मगर हाजी के लिए इसमें भी खुसूसियत है। तो हाजी के लिए मतलब है कि ज़्यादा है कि उसकी दुआ वो भी खुसूसन बाद ज़वाल, खुसूसन अरफात में, लेकिन आम है ये कि कबूलियत का दिन है ये कल। तो वो औलाद के लिए दुआ मांगे या किसी भी जायज़ काम के लिए दुआ मांगे, कबूलियत की उम्मीद ज़्यादा है। ये कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। जब भी दुआ मांगे बंदा, और जो ये मुक़द्दस दिन होते हैं जिनकी कोई ना कोई मतलब फजीलतें होती है, वो ज़्यादा मतलब मैंने कि इसमें दुआ हो सकता है कबूल हो, दुआ मांगने में हर्ज नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए एक और सवाल यह आया है कि किसी ने नफली तवाफ़ किया तो क्या उसके बाद नफिल पढ़ने होंगे? 2 रकात नमाज जो तवाफ़ के बाद पढ़नी थी, चाहे वो नफल के बाद ही, नफल का सवाल नफल के बाद भी पढ़नी है। तो अगर भीड़ की वजह से मकाम इब्राहिम में नमाज ना पढ़ सके तो मस्जिद शरीफ में किसी और जगह पढ़ ले, और मस्जिदुल हराम के अलावा कहीं और पढ़ी जब भी हो जाएगी। मकाम इब्राहिम के बाद इस नमाज के लिए सबसे अफजल काबा मुअज़्ज़मा के अंदर पढ़ना है, मकाम इब्राहिम के बाद। तो मकाम इब्राहिम के बाद इस नमाज के लिए सबसे अफजल काबा मुअज़्ज़मा के अंदर पढ़ना है, फिर हत्तीम में, फिर मिज़ाब रहमत के नीचे, इसके बाद हत्तीम में किसी और जगह, फिर काबा मुअज़्ज़मा से करीब तर जगह में, फिर मस्जिदुल हराम में किसी जगह, फिर हरम मक्का के अंदर, जहाँ भी हो। सुन्नत यह है कि वक्त कराहत न हो तो तवाफ के बाद फौरन नमाज पढ़े, बीच में फासला ना हो, और अगर ना पढ़ी तो उम्र भर में जब भी पढ़ेगा अदा ही है, कज़ा नहीं, मगर बुरा किया कि सुन्नत फौत हुई। यानी कोई वक्त कराहत अगर नहीं है, जैसे मकरूह औक़ात होते ना, उनमें नहीं पढ़ेंगे, तो अब ये कि फौरन पढ़ ले। अगर मकरूह वक्त नहीं है, हाँ वज़ू नहीं है सर, वज़ू शर्त है, तो वज़ू करके पढ़ ले, मगर यह कि बिला वजह इसमें फासला ना करे। इसको लिखा कि बुरा किया कि सुन्नत फौत हुई, बुरा किया इसका मतलब सुन्नत मुक्कदा है। जब भी बुरा किया लिखा है, कहना जल्दी पढ़ना, इसको कोई उज़्र ना हो तो जल्दी पढ़ना है, वरना सुन्नत मुक्कदा छूटेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, क्या सोमालिया के बकरे की कुर्बानी जायज़ है? सोमालिया का बकरा को इसमें क्या होता है? बकरा ही है ना।
कोई इसमें कोई अगर वो है वाकई बकरा और जंगली भी नहीं है तो बिल्कुल कुर्बानी हो जाएगी, अगर शराइत पाए जाए तो। सोमालिया का हो या अमेरिका हो या अफ्रीका का, कहाँ की भी हो। अब इसमें कोई और टेक्निक है इस सवाल में तो मैं फिर समझ नहीं पाया हूं। अगर वो है बकरा तो कोई इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है जो शरीयत ने जिसको खराबी करार दिया हो, तो फिर कुर्बानी तो हो जाएगी। तो सोमालिया का होना इसमें कोई ऐब नहीं है। मुल्क के ताल्लुक से तो कोई सी चीज नहीं है ना। जी जी, अगर बकरा है और कुर्बानी की शरत वहाँ कहीं का। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ देखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आरफा से ज़्यादा किसी दिन जहन्नमियों को आज़ाद नहीं किया जाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला करीब यानी अपनी रहमत के साथ मुतवज्जह होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है और इस्तिफ़सार फरमाता है कि मेरे बंदे क्या चाहते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रब अज़्ज़ व जल, ये अफ़्व व मग़फ़िरत चाहते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया और इनसे दरगुजर किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही हम माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम में रोज़े रखने वालों की नीयतों के हवाले से सुनते हैं। आइए आज की रोज़े की नीयतें भी सुनते हैं।
ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی نیتیں، 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,282 23,282، اسلامی بہنوں کی تعداد 10,457 10,457، 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 32,231 32,231، اسلامی بہنوں کی تعداد 11,986 11,986، 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 58,473 58,473، اسلامی بہنوں کی تعداد 26,923 26,923، کل روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,13,986 1,13,986، اسلامی بہنوں کی تعداد 49,366 49,366، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,63,352 1,63,352۔ 26 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حج کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟ جواب 9 سنہ ہجری میں۔ سوال نمبر 2، جنت سے آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا آپس میں کس دن ملے تھے؟ جواب 9 ذوالحج کو۔ سوال نمبر 3، جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب قبلے کی طرف۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: فخر شہزاد اتاری، پاک پتن، اسد اتاری، صحبت پور بلوچستان، بنت جاوید اتاریہ، مامو کانجن، بنت اسماعیل، سرجانی کراچی، محمد وقاص احمد، ڈیرہ اسماعیل خان، ابو بکر، واہ کینٹ، خادم حسین بن گلشن قادری، کمبر شہداد کوٹ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام خادم حسین بن گلشن قادری، کمبر شہداد کوٹ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات اگلے مدنی مذاکرے کے شروع ہونے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک میں کس دن کی دعا کو سب سے بہتر دعا فرمایا گیا؟ سوال نمبر 2، کس دن میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، عرفہ کی رات کتنی مرتبہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0341125554، تو اس نمبر پر آپ اپنے جوابات دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، یا اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں کر کے ان سوالات کے جو جوابات ہیں کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے اس SMS نمبر پر دے سکتے ہیں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔